ابھی جو شام میں انڈین اتھارٹیز کی میٹنگ پریس کانفرنس ہوئی ہے, they said that the DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first, and tomorrow there is a call already planned at 1200. Meanwhile, the IAF said that their operation is still continued. So what is Pakistan's strategy tomorrow when the two DGMOs are going to talk? Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی. جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی. ہماری جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے سیز فائر کی درخواست کی. کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں. فضائیہ اور بحریہ کے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کنٹرول لائن پر جنگ بندی پر سختی سے عمل پیرا ہیں. ہم ایک پیشہ ور فوج ہیں. ہم اپنے وعدوں پر پوری طرح عمل کرتے ہیں. فریق مخالف اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم جواب دیں گے اور ہمارا جواب بھرپور ہوگا. مسئلہ کشمیر ایک بار پھر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. مسئلہ کشمیر کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں. ان کے درمیان جنگ حماقت ہوگی. ہم میچور پلیئر ہیں. ہم کشیدگی کو کنٹرول کر رہے تھے. ہم امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. صرف جارحیت کو جواب دیتے ہیں. وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کے بھی قدردان ہیں. وزیر اعظم اور کابینہ نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فرمائی. DGISPR نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے 26 ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا. آدمپور اور بھوج میں S-400 نظام کو نشانہ بنایا گیا. پاک فوج نے بھارتی فوجی تنصیبات، دہشت گردی کے تربیتی مراکز کو تباہ کیا. پاکستان نے اپنی وسیع تر ٹیکنالوجی میں سے کچھ کا تحمل کے ساتھ استعمال کیا. اس طرح کی بے شمار ٹیکنالوجی کی صلاحیتیں مستقبل میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. پاکستان کے تمام حملے انتہائی مہارت کے ساتھ کیے گئے تاکہ عام شہری نشانہ نہ بنے. عالمی اور خود بھارتی میڈیا نے بھی بھارتی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی. بھارتی حملوں میں انفراسٹرکچر اور ایک ایئر کرافٹ کو معمولی نقصان پہنچا. سنتاس معاہدے پر پاکستان کی پوزیشن کلیئر ہے. پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی ہے. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی بریفنگ. کہا بھارتی فضائیہ کی جارحیت پر اس کے طیارے مار گرائے. بھارت نے ڈرون طیاروں سے پاکستانی شہری آبادی کو نشانہ بنایا. ڈرونز سویلین کی جگہ آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے. پاکستان نے تمام ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیاروں کا بروقت پتہ لگایا. براموس میزائل کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنایا. رفال بہترین جنگی طیارہ ہے. اصل بات پائلٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے. JF-17 طیارے پاکستان کا فخر ہیں. Pakistan Navy, with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. Alhamdulillah. پاک بحریہ کے وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود سے بھارتی جہاز 400 ناٹیکل میل کے فاصلے پر تھا. پاکستان نیوی کو تیار دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. دوران جنگ پاکستان نیوی بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی. 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نیوی سے بھی تیار تھی.
दौरान ब्रीफिंग वाइस एडमिरल रब नवाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगली बार जब आप पाक बहरिया और खामोश आदमी के बारे में सोचें तो याद रखें अल्लाह की मदद से हमारा एक्शन सब देखेंगे। जिस पर डीजी ISPR ने कहा, यही वजह है कि पाक बहरिया को देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाक भारत जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं। कराची जिना अस्पताल के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर ने होटल में अंधाधुंध फायरिंग की। जाहिर ने खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। शाह लतीफ टाउन में डकैती मजामत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। कराची के इलाके सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक सुलेमान और उसामा बाप बेटे हैं। जनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया गया। अभी जो शाम में इंडियन अथॉरिटीज़ की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दे सेड दैट द DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first, and tomorrow there is a call already planned at 1200. Meanwhile, the IAF said that their operation is still continued. So what is Pakistan's strategy tomorrow when the two DGMOs are going to talk? Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरखास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर की दरखास्त की। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। फिजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। हम एक पेशावर फौज हैं। हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। फरीक मुखालिफ अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। मसला कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मसला कश्मीर कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इनके दरमियान जंग हिमाकत होगी। हम मैच्योर प्लेयर हैं। हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिर्फ जारहियत को जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फैसलों के भी कदरदान हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क को इस नाजुक मोड़ पर दुरुस्त समत में रहनुमाई फरमाई। DG ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। आदमपुर और भोज में S-400 निज़ाम को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने भारतीय फौजी तनसीबात, दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ को तबाह किया। पाकिस्तान ने अपनी वसीतर टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। इस तरह की बेशुमार टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पाकिस्तान के तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए गए ताकि आम शहरी निशाना न बने। आलमी और खुद भारतीय मीडिया ने भी भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एयरक्राफ्ट को मामूली नुकसान पहुंचा। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है।
पाक फिजाइया को भारतीय फिजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की ब्रीफिंग। कहा, भारतीय फिजाइया की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। ड्रोन्स सिविलियन की जगह आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। बरामोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। रफाल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। Pakistan Navy, with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. Alhamdulillah. पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील के फासले पर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी से भी तैयार थी। दौरान ब्रीफिंग वाइस एडमिरल रब नवाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगली बार जब आप पाक बहरिया और खामोश आदमी के बारे में सोचें तो याद रखें अल्लाह की मदद से हमारा एक्शन सब देखेंगे। जिस पर DG ISPR ने कहा, यही वजह है कि पाक बहरिया को देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाक भारत जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए हम समझते हैं। कराची जिना अस्पताल के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर ने होटल में अंधाधुंध फायरिंग की। जाहिर ने खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। शाह लतीफ टाउन में डकैती मजामत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। कराची के इलाके सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक सुलेमान और उसामा बाप बेटे हैं। जनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया गया। हमास और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी पर मुज़ाकरात, गजा का इंतजाम आज़ाद और पेशावर इदारे के सपुर्द करने की हमास की पेशकश। हमास रहनुमा खलील हया ने कहा कि हमास ने अमरीकी कैदी की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास की जानिब से आमादगी गुजरगाहों को खोलने की हिमायत, इमदादी गुजरगाहों को खोलने की हिमायत। हमास अमरीका मुज़ाकरात पर इसराइल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यमनी हूसियों के साथ जंग बंदी पर भी इसराइल ने नाराज़गी का इजहार किया था। हमास और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी पर मुज़ाकरात, गजा का इंतजाम आज़ाद और पेशावर इदारे के सपुर्द करने की हमास की पेशकश। हमास रहनुमा खलील हया ने कहा कि हमास ने अमरीकी कैदी की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास की जानिब से आमादगी गुजरगाहों को खोलने की हिमायत, इमदादी गुजरगाहों को खोलने की हिमायत। हमास अमरीका मुज़ाकरात पर इसराइल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यमनी हूसियों के साथ जंग बंदी पर भी इसराइल ने नाराज़गी का इजहार किया था। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना।